फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया। गाइज, इन टुडेज वीडियो आज हम लोग डिस्कस करने वाले द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर। गाइज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एज फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज फ्रॉम दिस एज so many major writers, poets, novelists have been asked in UGC NET English exam. So stay tuned with me and don't skip while watching, because I'm just giving you all the important point which will help you in your upcoming UGC NET English exam. So first let's discuss about the modern age. तो guys, basically ये जो आपका modern age है in English literature during 1900 to 1950, right? So this period called the modern age in English literature. Basically guys, ये जो period है English literature में was a period of great changes in English literature. इस समय का जो traditional literary forms को challenge किया गया. Basically ये जो आपका modern age है, this is modern age because in this period traditional literary forms were rejected, right? Traditional literary forms were rejected, right? As well, new experiments can be seen during this period. New experiment can be seen during, right? As well guys, the world witnessed, पूरा world witnessed है, 2 world wars happened during this period, right? Basically I'm talking about World War First, which was during 1914 to 1908, and the World War Second, 1939 to 1945. So this is the witnessed. Just because of that, the Great Depression and the rapid industrialization you guys can see during this period, right? So guys, 2 world war can be seen during this period. World War First, which was during 1914 to 1918, and guys, World War Second, that was during 1939 to 1945. As well, the Great Depression, the Great Depression 1929. Guys, just because of that रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको देखने मिला, जिसने इन्फ्लुएंस किया कहीं ना कहीं लिटरेचर को डीपली ऑफ द मॉडर्न एज, राइट? तो मॉडर्न एज का जो लिटरेचर था वो डीपली इफेक्टेड था बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. एज वेल, these are the facts which I mention on the whiteboard, right? So guys, if I talk about the writers and poets started questioning, अभी क्या हो रहा है, जो मॉडर्न एज है यहाँ पे जो राइटर्स हैं, जो ड्यूरिंग दैट टाइम जो राइटर्स थे, लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेजर पॉइंट्स में W.B. Yeats हो गए, तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल बिलीव्स, राइट? सो गाइस, द राइटर्स ऑफ मॉडर्न एज स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, राइट? जो मॉडर्न एज के राइटर्स हैं स्टार्टिंग क्वेश्चनिंग, राइट? अभी वो क्वेश्चनिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल बिलीव्स को लेकर, राइट? ट्रेडिशनल बिलीव्स, राइट? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चनिंग होना स्टार्ट हो गया है राइटर्स के थ्रू रिगार्ड ट्रेडिशनल बिलीव्स, एंड यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, दे फोकस्ड ऑन रियलिज्म, राइट? साइकोलॉजी and fragmented storytelling. जो चीज़ें मैंने अभी आपको मेंशन की हैं ऑन दी वाइट बोर्ड, ट्रस्ट मी, एज ए कैरेक्टरिस्टिक आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे आपको ऑप्शंस में यही सब जैसे स्टार्टिंग क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल बिलीफ्स इन्हीं को फॉर्म करके दिया जाता है, एंड यू विल हैव टू सेलेक्ट द राइट आंसर.
So please make a note of it and try to make yourself prepare to such kind of questions, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर से फ्रेम करते हैं. If you think I am just not clear about that, so you guys can check out the PYQs, then you come to know, right? So whatever I discuss in my videos, everything is related to your PYQs as well, the question that can be asked in your examination which about to come, right? So let's discuss ahead the modern age of literature, right? So guys, to get more clarity towards this particular age, we have to understand about the key features of the modern age in literature, right? Key features of the modern age in literature, right? So first key feature we have break from tradition. Break from tradition. As I told you, ये जो आपका मॉडर्न एज है, जो राइटर्स राइटिंग कर रहे थे ड्यूरिंग दिस पीरियड, दे जस्ट ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन. तो कहीं ना कहीं ये रिजेक्ट कर रहे थे जितना भी आपका ट्रेडिशन फॉर्म होता है, लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशन को ये रिजेक्ट कर रहे थे और रियलिटी की तरफ मूव ऑन हो रहे थे, राइट? सो बेसिकली जो विक्टोरियन लिटरेचर था, बिफोर वी मॉडर्न एज स्टडी द विक्टोरियन लिटरेचर इन इंग्लिश लिटरेचर, सो विक्टोरियन लिटरेचर का जो आइडियलिज्म था कहीं ना कहीं उसको रिजेक्ट किया जा रहा था, राइट? So here they reject Victorian idealism, right? तो यहाँ पे क्या किया जा रहा था, इसको रिजेक्ट किया जा रहा था. एज वेल जो मॉडर्न राइटर्स थे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विद फॉर्म, स्टाइल एंड थीम्स. तो इनका जो स्टाइल है ऑफ देयर राइटिंग्स, फॉर्म्स एज वेल थीम्स, इन सभी को क्या किया जा रहा था, एक्सपेरिमेंट, राइट? दे वांट टू न्यू फॉर्म, राइट? दे क्रिएट न्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो दिस इज द फर्स्ट की फीचर. नेक्स्ट की फीचर वी हैव स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट? सो गाइज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जहाँ पे क्या किया जाता है, इनर थॉट्स ऑफ कैरेक्टर और साइकोलॉजी को एक्सप्लोर किया जाता है, राइट? इन द टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बेसिकली जो इनर थॉट्स ऑफ कैरेक्टर के होते हैं एज वेल द साइकोलॉजी को एक्सप्लोर किया जाता है. एंड एग्जाम्पल वी हैव जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ who used this technique on grade level, right? And I'm telling you, in my previous videos I have described in detailed manner about this particular technique, stream of consciousness, because from this technique you find so many questions in your examination. So please watch that my video so that you will get clarity, right? Let's move on the third key features of modern age. So guys, third key features we have disillusionment and loss of faith. सो देखिए गाइज, दिस इज एक नॉर्मल सी बात है जब एक वार्ड्स का आप बोलेंगे रीज़न बन रहा है एज का. आपने देखा कि ये जो आपका मॉडर्न एज है किस तरीके से टू ग्रेट वॉर्स, वर्ल्ड लेवल की जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड से कहीं ना कहीं हैपन हुआ है यहाँ पे. तो जितना भी जो एक फेथ होता है इंसान के मन में, दैट ऑल हैज़ गॉन फ्रॉम द माइंड ऑफ एवरीबडी, इवन द राइटर्स ऑफ ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो बेसिकली इन द राइटिंग्स ऑफ राइटर आपको देखने मिलेगा वार, जो वार के रीजंस हैं. तो राइटर की जो होप होती है एक, और एक जो रिलीजियस फेथ होता है, ऑल हैव गॉन. और वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑन द रिलीजियस जो फेथ होता है उस पर क्वेश्चंस पुट करने लगे थे राइटर्स. So this is the illusionment and loss of faith, right? Next we have focus on the individual. Number 4 key features we have focus on the individual.
जहाँ पर ट्रेडिशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है, सो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंडिविजुअलनेस को एक्सेप्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल एक हमारा एक सेपरेट फैमिली होता है और एक होता है हमारा एक बिग फैमिली जहाँ पे हम लोग साथ में इकट्ठे रहते हैं, राइट. सो बेसिकली जो मॉडर्न एज है वो आपका एक सेपरेट फैमिली की तरह है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देते हैं. दे हैव नो any kind of respect, or you guys can say importance towards the collective society. So that's why ये जो आपके मॉडर्न एज के राइटर्स हैं और जो दे आर जस्ट इन देयर राइटिंग कहीं ना कहीं फोकस कर रहे थे पर्सनल एक्सपीरियंस को, इमोशंस को, और उन्हीं को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे अपनी राइटिंग्स में, राइट. तो एक कंबाइंड फैमिली और एक सेपरेट फैमिली. सो दिस इज द एग्जांपल. कंबाइंड फैमिली वेयर द ट्रेडिशन जो आपकी फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, एंड दी मॉडर्न एज जहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है आपकी ट्रेडिशनल को, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल. गिव द इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स द इंडिविजुअलनेस, राइट. सो दिस इज द नंबर 4 key features of the modern age in literature. Number 5 key features we have symbolism and imagism. Symbolism and imagism, right. तो बेसिकली गाइज ये जो आपका मॉडर्न एज है, जो पोइट्री आप देखेंगे आपकी मॉडर्न एज की, तो कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन सिम्बॉलिज्म, क्योंकि सिंबल के थ्रू जो आपके पॉइट्स हैं वो अपनी पोइट्रीज में अपने राइटर्स को कहीं ना कहीं इंगेज कर रहे थे. एज वेल दे यूज द इमेजेस, राइट. तो पोइट्रीज में अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाने लगा. अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, right. So these ideas introduced in poetries of modern age जो writers लिख रहे थे, as well symbols और powerful image को वो कहीं ना कहीं express कर रहे थे अपने ideas को explore करने के लिए, right. So this is the symbolism and imagism which we study in the modern age of literature. So number 6 I have most important point which gives you clarity towards this age: fragmentation. फ्रेगमेंटेशन का हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है द वेस्टलैंड, विच वॉज रिटन बाय T.S. Eliot इन 1922. कंप्लीट ये आपकी इन फ्रेगमेंटेशन में है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी वर्क कंसिडर किया जाता है. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन. तो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो स्टोरीज और पोएम्स होती हैं अक्सर नॉन लीनियर होती है, राइट. दे आर नॉन लीनियर. एज वेल डिसजॉइंट होती है, आप बोल सकते हैं डिसजॉइंट, राइट. यू कांट इवन क्लैरिफाई वेयर द स्टार्टिंग एंड वेयर द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी. सो दैट्स द मीन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, नॉन लीनियर वे होता है एंड डिसजॉइंट होती है. एज वेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ. तो जितनी भी आपकी मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज है, मॉडर्न लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज एक्सप्लोर की जाती है, राइट. सो ये तो आपके फीचर्स हो गए. वाई डू वी स्टडी फीचर्स ऑफ द पर्टिकुलर एज? बिकॉज इट गिव्स अस क्लैरिटी टूवर्ड्स द एज. अगर आपको फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एज से क्वेश्चन मिलेगा, विच इज डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, सो यू गाइज कैन ईजिली आंसर. अगर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं डेफिनेटली फ्रॉम दिस एज, तो अभी आप आंसर कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव क्लियर कट टूवर्ड्स द एज, राइट. तो फीचर्स हमें इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. एवरी ईयर के आपको जितना भी एजेस यू स्टडी इन लिटरेचर, आपको उसके फीचर्स को एक बार गो थ्रू करना है, बिकॉज इट गिव्स यू क्लैरिटी टूवर्ड्स द एज, राइट. सो यही मेरा मोटिव था, दैट्स वाई आई डिस्कस. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मेजर पॉइंट्स ऑफ द मॉडर्न एज और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, राइट. So guys, let's discuss major poets of the modern age and their contribution. Most important, because from that you particular get the what kind of or what we have the list of major poets from the modern age. So first we have W.B. Yeats. W.B. Yeats, right? इनका टाइमलाइन आपको सस्टेन रखना है अपने माइंड में, जितने भी मेजर पोइट्स एंड राइटर्स यू स्टडी इन पार्टिकुलर एजेस ऑफ लिटरेचर, बिकॉज इट गिव्स यू क्लैरिटी टुवर्ड्स द आंसर. अगर आपको क्वेश्चंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस एग्जामिनर देते हैं टू सेट देम इन क्रोनोलॉजी मैनर अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ देयर बर्थ, राइट. और मेजर राइटर्स को वो कहीं ना कहीं फोकस करते हैं. तो दीज आर दी मेजर पोइट्स ऑफ द मॉडर्न एज. सो इनका जो टाइम लाइन है 1865 to 1939, राइट.
ये जो यीट्स थे ये रोमांटिक और मॉडर्निस्ट पोइट्री के मिड में एक ब्रिज का काम किया है इन्होंने। ये जो आपकी W.B. यीट्स है, ही डन हिज वर्क टू मेक द ब्रिज बिटवीन द मॉडर्निस्ट एज वेल रोमांटिक, राइट। इनका जो अर्ली वर्क्स है वो कहीं ना कहीं जो इनकी इरिश, क्योंकि ये इरिश पोइट है, इरिश मैथोलॉजी पर बेस्ड है, फॉल्कलोर पर उसका आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। लेकिन आफ्टर दैट ही मूव टूवर्ड्स द मॉडर्निस्ट स्टाइल, क्योंकि देन फर्स्ट ही अर्लियर जो इनकी राइटिंग्स है और इनके वर्क्स है वो इरिश मैथोलॉजी पर बेस्ड है, एंड देन ही मूव टूवर्ड्स द मॉडर्निस्ट स्टाइल, इसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। और लेट्स टॉक अबाउट दी थीम्स एंड स्टाइल। बेसिकली जो इनकी वर्क्स है इरिश नेशनलिटीज़ और पॉलिटिक्स पर बेस्ड हैं। मैस्टिसिज्म एंड मेथोलॉजी आपको देखने मिल जाएगा इनके वर्क्स में, एज वेल चेंज ऑफ ट्रेडिशन का जो एक स्ट्रगल होता है, यू गाइस कैन सी इन दी वर्क्स ऑफ मेजर पोएट W.B. यीट्स। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू मेजर वर्क्स रिटन बाय W.B. यीट्स। द सेकेंड कमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका पोएम है, दैट वॉज पब्लिश 1920। आई एम टेलिंग यू, ये कहीं ना कहीं जो सिविलाइजेशन का एंड हो रहा है ना, उसके बारे में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर पोएम में। एंड वन फैक्ट आई एम टेलिंग यू, जो आपकी चिनुआ अचीबे हैं, चिनुआ अचीबे टू हुम वी स्टडी इन अफ्रीकन लिटरेचर, इन्होंने अफ्रीकन ट्रिलॉजी करके अफ्रीकन ट्रिलॉजी इन्होंने पब्लिश कराया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट था इनका थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट इनकी फर्स्ट नॉवल थी। गाइज आई एम टेलिंग यू दिस टाइटल टेकन फ्रॉम, ये जो इनको टाइटल है वो W.B. यीट्स की द सेकेंड कमिंग पोएम की ही लाइन से लिया गया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एंड देयर इज चांसेस कि वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपसे अगेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। सो प्लीज़ प्रिपेयर काइंड्स ऑफ फैक्ट्स रिगार्डिंग एंड सस्टेन इन योर माइंड, राइट। Next we have work Sailing to Byzantium. Sailing to Byzantium. अगर आपने इग्नू से अपना मास्टर क्लियर किया है, देन आई एम टेलिंग यू कि वहाँ पे मास्टर्स में हमने Sailing to Byzantium पर्टिकुलर पोएम इनका स्टडी किया था, 1928 में है, और इसकी लाइन से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। देन यू विल हैव टू इन डिटेल्ड मैनर गो थ्रू वंस एटलीस्ट Sailing to Byzantium, उसका अच्छे से आपको एनालाइज करना है। 1928 में आया और बेसिकली एजिंग और इमॉर्टेलिटी पर बेस्ड है इनका ये जो पोएम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अनदर वी हैव ईस्टर 1916, ईस्टर 1916, राइट। ये इनका बेसिकली 1916 में ही आया है, और इसके अंदर इन्होंने इरिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर बेस्ड है, उसी के बारे में इन्होंने लिखा है ईस्टर 1916, और इसका जो इनका बेस है वो है आपका इरिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेके, राइट। सो इसका आपको की आइडिया पता होना चाहिए। जितनी भी पोएम्स हैं, मैंने मेजर आपको 3 पोएम्स इनकी बताई हैं। इफ़ यू हैव टाइम सो यू गाइज स्टडी W.B. यीट्स इन डिटेल्ड मैनर, एंड इनकी जितनी भी पोएम्स हैं उनको क्रोनोलॉजी में ऑलरेडी अपने पास नोट्स में सिक्योर करके रखना, क्योंकि क्रोनोलॉजी में भी W.B. यीट्स से आपको क्वेश्चंस मिलता है, राइट। सो ये वो राइटर्स हैं जिन्हें आपको स्किप नहीं करना, अवॉइड नहीं करना, राइट। अगर आप उनको स्टडी करते हैं डेडिकेशन के साथ, ट्रस्ट मी यू विल गेट सेम क्वेश्चंस that you secure in your notes. You will find out same question frame in your examination, trust me. Now let's move on the second, another major poet of the modern age. So guys, next we have T.S. Eliot. T.S. Eliot, right. इनका जो टाइम लाइन है 1888, बहुत ही ईजी इनका टाइम लाइन है, रिमेंबर 1965, राइट। इलियट जो थे, T.S. इलियट जो थे, अगर आई टॉक अबाउट दी पोइट्रीज, तो इनकी जो पोइट्रीज होती थी वो हाईलाइट करती थी कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल एंड कॉम्प्लेक्स जो थीम्स होते थे उन्हें हाईलाइट करती थी। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टलैंड, एज आई टोल्ड बिफोर द एग्जाम्पल एज सो जो इलियट की पोइट्रीज है कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्स को थीम पर बेस्ड होती थी, एज वेल इन्होंने क्लासिकल लिटरेचर, मैथोलॉजी एंड रिलीजियस को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। नाउ आई एम जस्ट राइटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्लासिकल लिटरेचर एंड मैथोलॉजी, रिलीजियस, इन सभी को इन्होंने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट
right, in modern context. So basically T.S. Eliot represent in modern context classical literature, mythology as well religious, right? So this is the most important fact regarding him. And if I talk about the themes in his style of T.S. Eliot, then he used disillusionment and spiritual emptiness in his writings. As I told you, in the key features of the modern age की disillusionment का time था, period था, तो इनकी writings में आपको disillusionment and spiritual emptiness देखने मिलेगा, fragmentation और illusion आपको देखने मिलेगा, क्योंकि he used in great level as well modern civilization का, पर इन्होंने criticism किया है, he criticism on the modern civilization in his writings. Let's move on the major works written by T.S. Eliot. So first we have the Wasteland, as I told you, revolutionary work. The Wasteland 1922, and next we have the love song of J. Alfred Prufrock. The love song of J. Alfred Prufrock, right? दिस वॉज पब्लिश 1915. और ये एक पर्सन की एक इनसिक्योरिटी और अलाइनेशन को एक्सप्लोर करती है, पर्टिकुलर इनकी जो पोएम है. एंड आई एम टेलिंग यू विल स्टडी इन डिटेल्ड मैनर एंड यू डेफिनेटली फाइंड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिलता है. यू गाइज प्लीज डोंट वरी, अहेड आई डिस्कस अबाउट दी PYQs जो आपसे फ्रॉम पर्टिकुलर राइटर से, ये जो आपके पॉइंट्स हैं बेसिकली T.S. Eliot और W.B. Yeats, इनसे जो आपसे PYQs पूछे गए हैं आई डिस्कस इन द एंड ऑफ माई वीडियो. सो स्टे ट्यून विद मी, ओके, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि वट एवर यू स्टडी रियली इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वर्थ फॉर यू ऑल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. सो ये तो इनका सेकेंड पोएम हुआ. एंड थर्ड वन वी हैव 4 क्वार्टर्स. 4 क्वार्टर्स, राइट. दैट वॉज ड्यूरिंग 1935 टू 1942 में लिखा गया. इसके और भी पार्ट से देख लीजिएगा. इसमें टाइम और स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं ये इन बेसिकली इस वर्क में अपने, राइट. और इलियट की तो पोइट्री इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइज ये कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म जो मूवमेंट है उनको डिफाइन करती हैं. जितनी भी पोइट्रीज आप देखेंगे T.S. Eliot की डिफाइंस मॉडर्निज्म मूवमेंट. दैट्स वाई ऑल दी पोइट्रीज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको डिटेल में देखना है T.S. Eliot को. मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताया है बिकॉज सॉरी गाइज आई हैव नो इनफ टाइम. दैट्स वाई जितना मेरे से बनता है मैं उतना आपको इंपॉर्टेंट और मेजर बताने की कोशिश करती हूँ. बट एज यू ऑल नो ऑनलाइन में आपको इतना कुछ नहीं बता सकती, कवर नहीं कर सकती वीडियो में. बट दैट मच आई डिस्कस विद यू ऑल. ट्रस्ट मी, आपको कहीं ना कहीं एक बेस बना देगा आपका अगर आप स्टडी करने बैठेंगे. तो दीज थिंग्स जो मैं आपके साथ मेंशन करती हूँ, इंटरेस्ट आपके अंदर आने लगेगा टू स्टडी दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट. तो आपका बेस में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती हूँ. आगे इन डिटेल आपको जितना जाना है दैट मच यू कैन, राइट. एंड दिस इज आई डिस्कस अबाउट द T.S. Eliot. नाउ लेट्स मूव ऑन द Ezra Pound, another major poet during the modern age. Ezra Pound. Ezra Pound, considered the leader of Imagist movement. Leader of Imagist movement, right? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. और इनका जो पोइट्री है वो कहीं ना कहीं कंसाइज करती है, पावरफुल. इनका लीडर होना ही इमेजिस्ट में इनकी पोइट्री को क्या करता है, पावरफुली कंसाइज करता है, राइट. और ये जो थीम्स होते हैं ये बेसिकली क्लियर इमेजेस की बात करते हैं, शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल लाइंस यूज़ करते हैं इन हिज वर्क्स. फ्री वर्ड्स का यूज़ करते हैं इनकी राइटिंग्स में, आपको फ्री वर्ड्स देखने मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स वी आर स्टडी द मॉडर्न एज, तो फ्री वर्ड्स ही आपको देखने मिलेगा. हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल थिंग्स पर बेसिकली ये ही टॉक्स इन हिज राइटिंग्स, राइट. लेट्स मूव ऑन दी मेजर वर्क्स रिटन बाय Ezra Pound. सो इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है. 1913 द पब्लिकेशन. और इसमें क्या है, ये 2 लाइन्स की पोएम है ओनली इनकी. इन 2 लाइन्स ओनली पोएम्स, मॉडर्न पोइट्री
इसको ये कहीं ना कहीं सिंबल, लेकिन इसका जो सिंबल है ना दैट वाज कम्प्लीटली डीप. अगर आप इसको डेप्थ में स्टडी करेंगे देन यू कैन क्रिएट 15 और 20 लाइन्स. जो इन्होंने 2 लाइन्स की ये पोएम लिखी है ना, स्टेशन ऑफ द मेट्रो, दैट वाज पब्लिश 1913. इसका अगर आप सिम्बॉलिज्म देखेंगे, सिंबल देखेंगे, देन यू नो कैन क्रिएट 15-20 लाइन्स ऑफ दैट 2 ओनली लाइन्स का. तो यही सिम्बोलिज्म आपको मॉडर्न एज में देखने मिलता है. ये उसका एग्जाम्पल है, राइट. नेक्स्ट वी हैव द कैंटोस. द कैंटोस दैट वाज ड्यूरिंग 1915 टू 1962. ये इनकी एक लॉन्ग पोयम है जिसमें इन्होंने हिस्ट्री इकोनॉमिक्स को एक्सप्लोर किया है, राइट. आफ्टर दिस वी हैव नंबर 3 ह्यूज स्लाइन मोबरले, राइट. ये इनका 1920 में आया है. और क्या है, ये एक मॉडर्न सोसाइटी और वार को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहा है, राइट. सो दिस इज द थर्ड वन. सो हियर गाइज आई डिस्कस अबाउट द इजरा पाउंड. आपको डिटेल में स्टडी करनी है इनके बारे में. इमेजिस्ट मूवमेंट को आपको स्टडी करना है बिकॉज आई डू नॉट शेयरिंग यू जो लिटरेरी मूवमेंट आपके मॉडर्न एज के, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर नहीं कर रही हूँ. बट इट डजेंट मीन दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यू विल हैव टू स्टडी देम. और इफ़ अगर मेरे को टाइम मिलता है देन आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, द लिटरेरी मूवमेंट ऑफ द मॉडर्न एज, राइट. और गाइज जितने भी पॉइंट्स वी स्टडी इन दी पर्टिकुलर एज और जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका एक अपना सिग्निफिकेंस होता है. अब देखिए पीछे मैंने टी.एस. इलियट का बताया. इसी तरीके से जो इजरा पाउंड है, इन्होंने कहीं ना कहीं मॉडर्न पोइट्री को एक न्यू डायरेक्शन दिया. एज वेल इन्होंने स्टार्टिंग किया इमेजिस्ट मूवमेंट का. दैट्स वाई इनको पूछा जाता है एग्जाम में. तो जितने भी राइटर्स होते हैं उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ऑन ग्रेट लेवल, उनको एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन फ्रेम करते ही करते हैं, राइट. सो वाइल स्टडिंग योर राइटर, आप किसी भी राइटर को स्टडी कर रहे हो, लेट्स चेक आउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज और हर इन लिटरेचर. देन यू ईजिली कम टू नो कि इज ही और is she important for exam point of view or not, right. Let's move on next point we have W.H. Auden. So guys, next number 4 we have W.H. Auden. इनका जो टाइमलाइन है 1907 टू 1973. देखिए जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको रिगार्डिंग मेजर पॉइंट के बारे में बताती हूँ उसको प्लीज़ माइंड में रखिएगा. जैसे कि जो आपके W.H. ऑर्डन थे, इन्होंने ट्रेडिशनल फॉर्म और मॉडर्न थीम्स को साथ में कंबाइन करके अपने वर्क्स लिखे थे, राइट. सो कहीं ना कहीं ही कंबाइंड ट्रेडिशनल फॉर्म एज वेल मॉडर्न थीम्स इन हिज राइटिंग्स, राइट. और कहीं ना कहीं इनके जो इन्होंने वार, पॉलिटिक्स और लव, ह्यूमन सफरिंग काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स पर अपनी राइटिंग्स में लिखा, राइट. सो इनके जो सब्जेक्ट्स होते थे दैट वाज वार, पॉलिटिक्स, राइट, लव एंड ह्यूमन सफरिंग, राइट. सो ही रोट इन हिज राइटिंग्स. और जो इनका स्टाइल होता था दैट वाज सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज को ये रेज करते थे. साइकोलॉजिकल डेप्थ की बात करते थे. एज वेल जो आपके रिदमिक और लिरिकल क्वालिटीज़ होती हैं ही डिस्कस इन हिज राइटिंग्स. लेट्स मूव ऑन द मेजर वर्क्स रिटन बाय W.H. Auden. सो फर्स्ट वी हैव फनरल ब्लूज. फनरल ब्लूज दैट वॉज 1938. ये इनकी एक ट्रेजिक एलिगी है जो जिसके अंदर इन्होंने ग्रीफ को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस किया है. दैट वॉज एलिजी, ओके. एंड नेक्स्ट वी हैव September 1, 1939. दिस इज द टाइटल. September 1, 1939. सेम ईयर 1939 में इन्होंने पब्लिश किया. इसमें इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड की स्टार्टिंग हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ही रॉट पावरफुल पोयम इनकी कंसिडर की जाती है. दैट वॉज सो स्टडीड इट, ओके. एंड नंबर 3 वी हैव द शील्ड ऑफ एचिल्स. द शील्ड ऑफ एचिल्स दैट वॉज पब्लिश 1955, राइट.
बेसिकली दिस वॉज मॉडर्न वार और हीरोइज्म की यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है. सो गाइज ये मैंने आपको W.H. ऑर्डन डिस्कस कर लिए. ऑर्डन की जितनी भी पोइट्रीज थी असेसिबल थी येट डीप थी. असेसिबल दिखते थे अपनी पोइट्रीज में बट डीप होती थी. और कहीं ना कहीं जो मॉडर्न पोइट्री है इन पर्टिकुलर W.H. ऑर्डन को इन्फ्लुएंशियल पोइट्स में काउंट किया जाता है बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग्स, राइट. नेक्स्ट वी हैव डेलन थॉमस. Number 5 major poets of the modern age. So guys, number 5 we have Dylan Thomas, 1914 to 1953, right? थॉमस की जितनी भी पोइट्रीज आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं हाईली लिरिकल और इमोशनली इंटेंस आपको देखने मिलेगा. और इन्होंने नेचर, लाइफ और डेथ को डीपली एक्सप्लोर किया है इन हिज राइटिंग्स. ओके. और कहीं ना कहीं ही टॉक्स अबाउट इन हिज राइटिंग एज ए थीम रिच इमेजरी और म्यूजिकली, राइट. म्यूजिकली कहीं ना कहीं ये क्या करते थे, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे इन हिज राइटिंग में एज ए स्टाइल एंड थीम्स. एंड लाइफ और डेथ के बारे में कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल रिकलेक्शन आपको देखने मिलता था एज वेल इमोशनल इंटेंसिटी एंड डीप सिम्बोलिज्म यू फाइंड इन द राइटिंग्स ऑफ डेलन थॉमस as a themes and style. Why do I say all the things to you? Because it gives you interest. आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ जाएगा टू स्टडी दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट. किसी भी पॉइंट को स्टडी करने के लिए उसके लिए इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी होता है. और उसका इंटरेस्ट हमें जब पता चलता है व्हेन वी नो एग्जैक्टली अबाउट दी स्टाइल एंड थीम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर राइटर, राइट. तो इट गिव्स यू इंटरेस्ट एंड यू गाइज डेडिकेशन के साथ उसको स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे. इट विल गिव you marks scoring of your as well. Now let's discuss about the major works written by. So first we have Do Not Go Gentle Into That Good Night. Do not go gentle into that good night. This is the title. Too long, but don't worry, this is okay. एंड बेसिकली ये जो इनका टाइटल है और इनका जो पोएम है दैट वाज पब्लिश 1951. और एक इमोशनल पोएम है इनकी, ये जो लाइफ और डेथ के स्ट्रगल के को बताती है. डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट. उस गुड नाइट में ज़्यादा जेंटल मत होने की कोशिश करो, राइट. नेक्स्ट वी हैव फन हिल. फन हिल से आपने देखा एग्जाम में कई बारी क्वेश्चंस आपको देखने मिला है. 1941 में है और इसके अंदर इन्होंने चाइल्डहुड की मेमोरीज को, नॉस्टैल्जिया को एक्सप्रेस किया है. जो इनकी चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं उस नॉस्टैल्जिया को इन्होंने एक्सप्रेस किया है इन दिस फन हिल पोएम, राइट. एंड गाइज नेक्स्ट वी हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन. यहाँ से तो आपको समरी बेस्ड और लाइंस भी आपकी आ जाती है, राइट, क्वेश्चन में. दैट वाज 1933 पब्लिकेशन है एंड ये डेथ और स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड है. एज आई टोल्ड यू कि जितनी भी इनकी जो पोएम्स होती हैं लाइफ और डेथ को फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन दिखाती है, तो वही सब है, राइट. और डेलन थॉमस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो पोइट्रीज है उसमें एक म्यूजिकल लिरिकल क्वालिटीज़ आपको देखने मिलेगी. अब देखिए आपसे म्यूजिकल अगर ऐड हो जाएगा कि विच राइटर, विच मेजर पोइट, right, use in modern age musical and lyrical quality. और अगर आपको वो ऑप्शन दे देंगे if you study little bit about particular Dylan Thomas, then you guys can easily answer. So ये आपको benefit मिलता है to study in detailed manner. Not everything you will have to study actually. You will have to study the major things that is आप बोल सकते हैं रिवॉल्व होती है अराउंड योर एग्जाम्स. सो अगर आप उन चीज़ों को फोकस करके स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर भी होता है और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर होते हैं, राइट. सो दैट्स वाई वी स्टडी डेलन थॉमस बिकॉज लिरिकल क्वालिटीज़ एंड म्यूजिकल आपको देखने मिलता है इनकी पोइट्रीज़ में और डीपली इमोशनल होती है. सिम्बॉलिक जो सिम्बल्स होते हैं इनकी पोइट्रीज़ के, जो पोएम्स के, दैट गिव्स दैम डीपली इमोशनल, राइट. सो ये तो गाइज मैंने आपके साथ 5 मेजर पॉइंट डिस्कस किए द मॉडर्न एज के. अभी हमारे पास मॉडर्न एज के नॉवेलिस्ट भी बचे हैं बट आई कैन नॉट कंटिन्यू, आई कांट एक्सप्लेन नाउ, बट यू विल हैव टू रिमेंबर 5 मेजर पॉइंट्स. लेट्स रिवाइज ऑल ऑफ दैम. Yeats, Eliot, Pound, Auden, Thomas.
these 5 you will have to study. Irish nationalism, mythology and transition from romanticism to modernism, ये तो आपके Yeats हो गए. Eliot, known for fragmented intellectual poetry with historical and mythological reference. And Pound, Imagist movement की जिन्होंने स्टार्टिंग की, short and powerful poetry is given. As well Auden, जिन्होंने सोशल, पॉलिटिकल एंड पर्सनल थीम्स को ट्रेडिशनल मॉडर्न के साथ ब्लेंड किया. एंड ऑफ कोर्स वी हैव थॉमस, जिनके साथ क्या जॉइंट है, म्यूजिकल, इमोशनल एंड सिंबॉलिक पोइट्री. देखो आपका रिवाइज भी हो गया सारा. सो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है दैट. सो गाइस लेट्स डिस्कस PYQs. PYQs मेजर पॉइंट ऑफ द मॉडर्न एज की, राइट. तो बेसिकली मैं WB येट्स से लेकर चलती हूँ आपको. तो जैसे आपको क्वेश्चन मिला है, द वेस्ट लैंड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस. तो जो ये 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो वेस्ट लैंड है हाउ मेनी पार्ट्स इट डिवाइडेड, सेक्शन सॉरी. सो वी हैव 5 सेक्शन ऑफ द वेस्ट लैंड. सो फर्स्ट वी हैव द ब्यूरल ऑफ द डेथ, सेकेंड वी हैव अ गेम ऑफ चेस, थर्ड वी हैव द फायर सरमन, नंबर 4 वी हैव डेथ बाय वाटर एंड नंबर 5 वी हैव व्हाट द थंडर सेड. होप कि आपको इसके बारे में पता होगा. बट रिमेंबर वाइल यू स्टडिंग ऑल दी सेक्शंस आपको उनको क्रोनोलॉजी में ऑलरेडी लर्न करना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में भी आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द मॉडर्न एज हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द इमेजिस्ट मूवमेंट. अब देखिए इमेजिस्ट मूवमेंट के साथ कौन एसोसिएट नहीं है. T.S. Eliot का कोई रोल नहीं है यहाँ पे. अदरवाइज इजरा पाउंड, H.D. डूलिटिल एज वेल रिचर्ड एडिंगसन. दीज ट्रायो आर एसोसिएटेड विद दी आपकी इमेजिस्ट मूवमेंट. सो यहाँ से आपको ये रियलाइज़ होता है और आपको ये समझ आता है कि आपको इमेजिस्ट मूवमेंट को भी उसकी जितने भी मेजर आप बोल सकते हैं मेंबर्स हैं, यू विल हैव टू मेक अ लिस्ट एंड सिक्योर इन योर नोट्स. दैट विल गिव यू गुड रेस्पॉन्स, राइट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय WB येट्स. अब देखिए यहाँ पे आपसे ये 2018 में क्वेश्चंस आपको मिला था कि कौन सा है वर्क विच इज़ नॉट रिटन बाय WB येट्स. सो टू नो द आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू नॉलेज अबाउट दी. मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि आपको WB येट्स जितने भी मेजर पॉइंट्स आई डिस्कस इन टुडेज वीडियो, इनके मेजर टेक्स्ट आपको क्रोनोलॉजी में 10 और 12 नंबर्स ऑफ पोएम्स आपको क्रोनोलॉजी मैनर में सिक्योर करके अपने नोट्स में रखनी है एंड गिव दैम रिवाइज, राइट. वेन एवर यू गेट टाइम रिवाइज दैम, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा. सो ऑप्शन वी हैव द सेकंड कमिंग, द विल्ड स्वैन एट कूल, द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एंड सेलिंग टू बाइजेंटियम. सो आंसर हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे पूछा है नॉट रिटन बाय. तो मैंने भी आपको पीछे डिस्कस किया था, द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, दिस वॉज रिटन बाय T.S. Eliot, नॉट WB येट्स, राइट. सो इस तरीके से आपको आंसर करना है. 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच पोएम बाय डेलन थॉमस इज रिटन एज अ विलेनी, राइट. तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा टू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, क्योंकि ये आपका जो है पोएम है पर्टिकुलर विलेनिल फॉर्म में लिखा गया है, जिसे इनकी मोस्ट फेमस एलिजी कंसीडर किया जाता है, राइट. एंड 2022 में आपसे क्वेश्चन मिला था आपको, विच पोएट रॉट द लाइन अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ ब्रीडिंग लिलिकास आउट ऑफ द डेड लैंड. UGC नेट ने 222 में आपसे क्वेश्चन पूछा है. ये T.S. Eliot का द वेस्ट लैंड की लाइन है, राइट. जो इन्हों की पोएम है 1922 में आया, वहाँ से लाइन आई है. इस तरीके से आपको गाइस क्वेश्चंस मिलते हैं. आई हैव मोर क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी. आफ्टर फर्स्ट आई कंप्लीट दी ऑल एजेस ऑफ द ब्रिटिश लिटरेचर, जितना भी आपको डिटेल्ड में स्टडी कराना है मैं उन सबको कंप्लीट करा के आफ्टर दिस मंथ आई विल स्टार्ट द सीरीज ऑफ PYQs एज वेल MCQs, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी आपके क्वेश्चन तक, आपके एग्जामिनेशन तक. मैं आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगी. यू गाइज हैव नो नीड टू टेक एनी पेड कोर्सेज, राइट. ट्रस्ट मी, बट बिलीव मी, आपको डेडिकेशन के साथ स्टडी करना है. वट एवर आई से यू टू स्टडी इन डिटेल्ड मैनर, यू विल हैव टू स्टडी दैम, राइट. अगर आप उसको डिटेल्ड मैनर में स्टडी करेंगे, वट एवर आई मैंशन और एडवाइज यू, trust me, I have good experience. That's why I suggest you all. And if you follow all the things I mention or I advise you while watching or while recording the videos, please focus and start to preparing. You will definitely qualify this exam. Till then, bye bye. We will meet in next video. And if you guys new to my channel, don't forget to subscribe. And if you like the way I explain, please like कर दीजिएगा, क्योंकि आपके like करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है. ट्रस्ट मी, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होता है वो बहुत अच्छा मेरा बनता है because of your liking. So goodbye.